کاش کہ مجھے پہلے پتہ چل جاتا۔ خدا مجھ پر رحم کرے۔ میں اپنی بھتیجی کی موت کا خود ذمہ دار ہوں۔ میں نے اس کے لیے موت کو ایک حسین و جمیل پیکر میں خود اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ یہ حالات اتنے پر اسرار، اتنے عجیب اور دہشت انگیز ہیں کہ تم یقین نہ کرو گے کہ اس دنیا میں ایسا بھی ممکن ہے۔ باخدا مجھ جیسا احمق انسان روئے زمین پر کوئی نہ ہوگا۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا اور کچھ نہ سمجھ سکا۔ میری پیاری لڑکی کا اس حسین بلا نے سارا خون چوس لیا اور میں دم تک نہ مار سکا۔ کاش کہ مجھے احساس ہو جاتا۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی ہارر سٹوری کارمیلا ویمپائر ایپیسوڈ نمبر 2۔ جس بلا نے اسے میرے ہاتھوں سے چھینا ہے، میں مرتے دم تک اسے ڈھونڈتا رہوں گا اور دنیا کو اس کے ناپاک وجود سے پاک کر دوں گا۔ اب تو میرے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاہم کبھی کبھار امید کی ایک کرن چمک اٹھتی ہے جو یقیناً میری رہبری کے لیے بہت ہے۔ میں اب اس بلا کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ میرے لیے تم دعا کرنا، خدا مجھے اپنے اس مقدس مشن میں کامیاب کرے۔ زندہ رہا اور کبھی ملاقات ہوئی تو سارا قصہ زبانی کہوں گا۔ خط میں یہ تمام تفصیلات لکھنا ممکن نہیں۔ میری منزل مقصود اب ویانا ہے۔ مجھے توقع ہے کہ اپنا کام ختم کرنے میں کم از کم 2 ماہ لگ جائیں گے، اور اگر میں اس بلا کو ختم کر سکا تو ضرور تم سے ملنے آؤں گا، ورنہ سمجھ لینا تمہارا دوست بھی فنا کے گھاٹ اتر چکا۔ خدا حافظ۔ ایک بار پھر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں نے سچے دل سے مرنے والے کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ والد کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ انہوں نے اذیت ناک خاموشی توڑتے ہوئے کہا، سمجھ میں نہیں آتا جنرل ڈاروف کس بلا کی تلاش میں ویانا کی طرف روانہ ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ صدمے سے اس کا ذہن معوف ہو گیا۔ نہ جانے کیوں کر اس کے ذہن میں یہ بات سما گئی کہ ایک ناپاک وجود نے اس کی بھتیجی کا خون چوسا ہے۔ بہرحال اب 2 ماہ بعد ہی صحیح واقعات معلوم ہو سکیں گے۔ اس دوران میں ہمیں صبر سے جنرل کی آمد کا انتظار کرنا ہوگا۔ آؤ اب گھر چلیں۔ دیکھو سورج غروب ہو گیا اور تاریکی بڑھتی جا رہی ہے۔ چاند تھوڑی دیر بعد نکلے گا۔ آج 14ویں تاریخ ہے۔ ہم واپس قلعے کی طرف چلے اور اب اندازہ ہوا کہ ہم جنگل میں خاصی دور قریباً 1 میل اندر تک نکل آئے تھے۔ دور ہمارا قلعہ اور والد کے کمرے کی روشنی یہاں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ جو ہی ہم پل کے نزدیک پہنچے، سامنے سے کسی گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آئی۔ شاید کوئی گھوڑ سوار اس طرف آ رہا ہے۔ پھر ہم نے مادام پیری ڈون اور مادام لا فولٹن کو ٹہلتے دیکھا۔ انہوں نے ہمیں اشارے سے سلام کیا اور گردنیں موڑ موڑ کر جنگل میں اس جانب دیکھنے لگی جدھر سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس طرف پہاڑی کی ڈھلوان تھی اور میں نے دیکھا کہ ادھر سے گہرے سرمئی رنگ کی رقص کرتی ہوئی کوہر یا دھند آہستہ آہستہ جمع ہو رہی ہے۔ اسی لمحے مشرقی افق سے چاند کا روشن چہرہ ابھرا اور اس کی روشنی میں پہاڑی کے دامن میں بنا ہوا وہ قدیم مینار دکھائی دیا جس پر کبھی مسلح پہرے دار متعین تھے۔ غالباً یہ مینار اس راستے اور قلعے کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اب صدیوں سے ویران پڑا تھا اور اس کے اندر حشرات الارض اور چمگادڑوں نے اپنے اپنے مسکن بنا رکھے تھے۔ خدا جانے اس وقت کون جنگل سے گزر رہا ہے، مادام پیری ڈون نے کہا۔ سنا ہے 14ویں کا چاند طلوع ہوتے ہی بد روحیں آزاد ہو جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے زیر لب کچھ پڑھا۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز لمحہ بے لمحہ قریب آ رہی تھی۔
और अब यूं लग रहा था जैसे कई घोड़े दौड़ रहे हों। वालिद मोहय्यत के आलम में चांद की तरफ तक रहे थे। मादाम पेरिडोन को ज़ारे लब कुछ पढ़ते सुनकर उन्होंने कहा, मादाम तुम भी क्या अजीब बात करती हो, भला 14वीं के चांद का बदरूहों से क्या ताल्लुक? हाँ, मैंने किताबों में पढ़ा है, चांदनी बाद नफ्सियाती अमराज में अजाफे का सबब बन जाती है, यानी पागलों का पागलपन बढ़ जाता है, या चांदनी रातों में लोग डरावने ख्वाब कसरत से देखते हैं, खसूसन वैसे लोग जिनके ऐसे असाब कमज़ोर हों। बस इन्हीं अमराज का नाम वहम परस्तों ने बदरूहें रख दिया है। आप सही फरमाते हैं, मादाम पेरिडोन ने आहिस्तगी से कहा, लेकिन मैंने ऐसे वाक़यात सुने हैं जिनसे ज़ाहिर होता है चांदनी रातों में बदरूहें भी सफ़र करती हैं और कभी कभी खून अशाम चुड़ैलों की शक्ल में भी नमूदार होती हैं। बहुत बरस पहले की बात है, मेरे एक चचाजाद भाई किसी बहरी जहाज़ पर कप्तान का साथी था। उसने खुद मुझे एक अजीब वाक़या सुनाया। कहता था कि एक चांदनी रात को हमारा जहाज़ गहरे समुद्र में सफ़र कर रहा था। रात के पिछले पहर, जबकि चांद पूरे जोबन पर था और समुद्र का मंजर नहायत दिलफरेब हो रहा था, मैं जहाज़ के अर्शे पर पुश्त के बल लेटा चांद को तक रहा था कि आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। फिर मैंने ख्वाब देखा, फिज़ा में बेशुमार नन्हे नन्हे ज़र्रे रक्स कर रहे हैं। मेरे देखते ही देखते ये ज़र्रे जमा होने शुरू हुए। फिर उन्होंने एक इंतहाई हसीन व जमील औरत की शक्ल इख्तियार कर ली। ये औरत सर से पैर तक स्याह लिबादे में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा रोशन और आंखें मशअलों की मानद दहकती हुई और होंठ बेहद सुर्ख, और जब वो मुझे देखकर मुस्कुराई तो उसके नोकीले सफ़ेद दांत चांदनी में मोतियों की तरह चमक उठे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे नज़दीक आई और मुझ पर झुक गई। दफतन मेरी आँख खुल गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और खुदा की कसम वही औरत जिसको मैंने ख्वाब में देखा था मेरे ऊपर झुकी मुझे देख रही थी। खौफ से मेरी चीख निकल गई। चंद मल्लाह जो अरशे पर घूम रहे थे दौड़ते हुए आए और उन्हें आता देखकर वो औरत आहिस्ता आहिस्ता फिजा में तहलील हो गई। मादाम पेरिडोन ये हकायत सुना रही थी और मेरे जहन में 8 साल पहले के उस भयानक वाक़े की याद ताज़ा हो रही थी, जब मैंने आधी रात को ऐसे ही हुलिये की एक औरत को देखे था। दफतन वालिद साहब नाराज़ होकर उससे बोले, क्या औट पटांग किसे बयान करती हो, इतना भी ख्याल नहीं कि लड़की डर जाएगी। फिर वो कान लगाकर टापों की आवाज़ सुनने लगे। चंद मिनट तक हम पत्थर के बुतों की मानद बेहिस्सो हरकत खड़े रहे। वालिद ने मेरी तरफ देख कर कहा, ना मालूम क्या बात है, मेरा दिल आप ही आप सीने में बैठा जाता है, खुदा हम पर रहम करे। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हम पर कोई आफत टूटने वाली है। मुमकिन है जनरल डराउफ का गम खाना पढ़कर मेरे अंदर इस एहसास ने जन्म लिया हो। ऐन उसी लम्हे टापों की आवाज़ और तेज़ हो गई। अब मालूम हुआ कि घोड़सवार के अक़ब में कोई भारी घोड़ा गाड़ी भी दौड़ रही है। पहाड़ी सड़कों और सुनसान जंगल में इस किस्म की आवाज़ें दूर तक फैलती और देर तक गूंजती रहती हैं। चंद सानिये बाद हमने देख लिया, आगे आगे 2 घुड़सवार थे जो बिजली की मानद लकड़ी के पुल पर से गुजर गए। उनके पीछे नहायत शानदार रंग की गाड़ी थी जिसमें बेहद उम्दा नस्ल के 4 स्याह घोड़े जुते हुए थे। 2 खादम उस गाड़ी के पीछे पायदान पर नहायत मुस्तैदी से खड़े थे। साफ ज़ाहिर था वो खासा तवील फासला तय करके आए हैं और ये बात भी अयां थी उस गाड़ी में ऊंची हैसियत के अफराद सफ़र कर रहे हैं। पुल पर से गुजरते हुए यक लख्त घोड़ों ने ठोकर खाई
और आनन फानन गाड़ी उलट गई। कोचवान भी मुंह के बल गिरा मगर फौरन उठ खड़ा हुआ। गाड़ी के अंदर से औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बुलंद हुई। तेज दौड़ते हुए घोड़े कुछ दूर तक उल्टी हुई गाड़ी घसीटते ले गए, फिर रुक गए। ये हादसा इतना गैर मुतवक्का था कि देर तक हम सब दम बखुद अपनी जगह खड़े रहे। फिर यकलख्त वालिद को जैसे होश आया, उन्होंने मुझे वहीं रुकने का हुक्म दिया और खादमाओं को साथ लेकर उल्टी हुई गाड़ी की तरफ दौड़े। मुझ में बिलाशुबा हरकत करने की हिम्मत ना रही थी और मैं इस हादसे की ताब ना लाकर दोनों हाथों से अपना मुंह ढांपे खड़ी थी। गाड़ी की जानब से अभी तक औरतों के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ें थम गई तो मैंने डरते डरते मुंह पर से हाथ उठाए और उधर देखा। 2 घोड़े ज़मीन पर गिरे पड़े थे और बदहवासी से उछल रहे थे। पिछले पायदान पर खड़े होने वाले खादमों में एक गालबन मर चुका था और दूसरा ज़ख्मी होने के बावजूद उल्टी हुई गाड़ी में से खिवातीन को निकालने की कोशिश कर रहा था। आगे जाने वाले दोनों घुड़सवार अभी तक शायद हादसे से बेखबर थे, वरना वो वापस ज़रूर आ जाते। मेरे वालिद ने उस खादम की मदद से पहले एक औरत को गाड़ी से बाहर निकाला, फिर दूसरी को, जो या तो बेहोश थी या मर गई थी। दूसरी को उन्होंने आहिस्ता से ज़मीन पर लेटा दिया। पहली औरत तवील कामत और भारी जिस्म की थी। उसका चेहरा और मुंह नकाब में पोशीदा था और वो एक लंबा स्याह कोट पहने थी। उसके हाथ बर्फ़ की मानद सफ़ेद, दाएं हाथ में रुमाल था जिससे वो बार बार अपने आंसू पूंज रही थी। उसका लहजा तहकमाना और गुफ्तगू का अंदाज बेहद वकार था। वो कई मर्तबा और फर्श पर पड़ी हुई उसने औरत को देखा जिसकी उम्र 17-18 बरस से ज़ायद ना होगी। मेरे वालिद ने चंद मुनासिब अल्फाज में तसल्ली और तशफ़ी के कलमात कहे, जिसके बाद बावकार खातून ने रोना धोना बंद कर दिया और चेहरे से नकाब उलट दी। अब मैं शाम की धुंधली धुंधली फ़िज़ा में मैंने देखा कि वो नहायत हसीन औरत थी। नाक लंबी, गर्दन लंबी, भुवें गहरी स्याह और होंठ पतले पतले और गैर मामूली तौर पर सुर्ख। चेहरे का रंग दूध की मानद सफ़ेद और किसी कदर जर्दी माइल था। उसने 2 बार मुड़कर मेरी जानब देखा और उसकी तेज़ निगाहें जैसे मेरे दिलो जिगर को चीरती हुई निकल गईं। मैंने घबराकर फर्श पर पड़ी हुई नाज़नीन की तरफ देखा, जिसका मरमरी बदन किसी कदर बरहना हो गया, लेकिन चेहरा घास में छुपा था और उसके सीने के ज़ेरो बम से अंदाज़ा हो रहा था कि वो ज़िंदा है। वालिद ने मादाम पेरीडॉन और ला फोल्टन को जल्दी पानी लाने का हुक्म दिया। वो दोनों भागती हुई किले की तरफ गईं और चंद मिनट बाद किले के खादम पानी की सुराही लेकर और एक छोटा लोहे का पलंग उठाए नमूदार हुए। उन्होंने मिलजुल कर बेहोश लड़की को पलंग पर लिटाया और पानी के छींटे उसके मुंह पर मारे। वो सब के सब पलंग को घेरे खड़े थे, इसलिए इस मर्तबा भी लड़की की सूरत मैं देखने से महरूम रही। बावकार औरत ने बताया कि बेहोश होने वाली लड़की उसकी बेटी है और फिर उसने बेकरारी से झुककर शायद अपनी बेटी की नब्ज़ देखी और ऐलान किया कि नब्ज़ की रफ्तार सुस्त पड़ती जा रही है, इसे फ़ौरन तबी अमदाद की ज़रूरत है। लेकिन इनमें फ़ौरी तौर पर तबी अमदाद उसे क्यों कर दी जा सकती थी? वालिद ने कहा कि हम इसे उठाकर किले में ले चलते हैं, फिर एक मुलाजम डॉक्टर को बुलाने रवाना हो जाएगा। ये सुनकर औरत ने आह भरते हुए कहा, मगर मैं यहाँ रुक नहीं सकती, मुझे बेहद अहम काम से आगे जाना है। मुझे अफसोस है इस हादसे के बाइस आप लोगों को ख्वा मख्वा ज़हमत बर्दाश्त करना पड़ रही है। काश कि मैं यहाँ कुछ देर रुक सकती। बस यूँ समझ लीजिए, मौत और ज़िंदगी का मामला दरपेश है। एक एक लम्हा मेरे लिए कीमती है और मैं देखती हूँ मेरी बच्ची इस हालत में सफ़र करने के बिल्कुल काबिल नहीं और ना जाने कब तक इसके काबिल हो सके।
क्या आप बता सकते हैं यहाँ से करीबी गांव किस कदर फासले पर है, ताकि मैं अपनी बच्ची को वहाँ छोड़ दूँ और वापसी में अपने साथ ले जाऊँ, जो कम से कम की 3 माह की मुद्दत होगी। वालिद अभी कुछ जवाब देने ना पाए थे। मैंने वालिद का कोट पकड़कर उन्हें अपनी तरफ मतवज्जा किया और चुपके से कहा, अब्बा जान, क्या ही अच्छा हो अगर आप इन खातून की बेटी को अपने यहाँ ठहरा लें। अगर आप दरख्वास्त करें तो यकीनन ये मान जाएंगी। वालिद ने आहिस्ता से मेरा हाथ दबाया और खातून से मुखातब हुए। मादाम, अजीब इत्तफाक है, ये हादसा मेरे मकान के करीब पेश आया और मैं आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। आप अपनी बेटी को अगर इतने अरसे के लिए मेरे घर छोड़ जाएं, तो मैं और मेरी बेटी आपकी मेहरबानी के नहायत शुक्रगुजार होंगे। वादा करता हूँ आपकी बेटी को अपनी बेटी समझूंगा और उसकी उसी तरह देखभाल की जाएगी जिस तरह मेरी हकीकी बेटी की देखभाल की जाती है। मेरे तमाम नौकर चाकर उससे इज़्ज़त व एहतराम और मोहब्बत का सलूक करेंगे। अगर आप मुझे एतमाद के लायक समझें तो यह हकीर दरख्वास्त कबूल फरमाएं। मेरी बेटी लारा की ख्वाहिश भी यही है कि आपकी बेटी हमें अपनी मेज़बानी का मौका दे। मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि मेरी बेटी इन दिनों अपने एक हम उम्र लड़की के यहाँ आने की मतवक्का थी, मगर आज ही उसके वालिद का ख़त आया जिसमें इंदुना खबर थी कि वो इंतकाल कर गई। मुझे और मेरी बेटी को अज़हद जिसने उदास कर दिया है, और मुझे यकीन है कि आपकी बेटी के हमारे मकान में कुछ अरसा क़याम करने से हमारी उदासी दूर हो जाएगी। जहाँ तक किसी करीबी गांव का ताल्लुक़ है, वो यहाँ से कम 30 मील दूर है, जहाँ एक मामूली सराय है और उसमें आप अपनी बेटी को रखना किसी सूरत में पसंद ना करेंगे, और वहाँ उसकी देखभाल मुमकिन भी नहीं जो मेरे गरीब खाने पर मुमकिन है। वालिद की ये तकरीर असर अंदाज हुई। खातून की आंखों में तशक्कर और ममनूनियत के आसार नमूदार हुए। ऐन उसी लम्हे वो दोनों घुड़सवार जो गाड़ी के आगे सरपिट दौड़ रहे थे वापस आए और कांपते हुए उस बावकार खातून के सामने अदब से खड़े हो गए जिसका नाम अभी तक मालूम ना हुआ था। खातून ने जर्मन ज़बान में उससे ना जाने क्या कहा कि वो फ़ौरन मरे हुए साथी की तरफ मतवज्जा हुए, और जब देखा कि वह मर चुका है तो उसे वहीं पड़ा रहने दिया। फिर उन्होंने गाड़ी सीधी की, घोड़ों को चमकारा। उसी लम्हे मैंने एक गाड़ी के अंदर स्याह रंग की एक हबशी औरत भी मौजूद थी जिसके बड़े बड़े सफ़ेद चमकीले दांत बाहर निकले हैं, और उसे देखकर मैं सख्त खौफज़दा हो गई और मैंने वालिद का बाजू सख्ती से थाम लिया। दोबारा मुझे गाड़ी की तरफ निगाह उठाने की जुर्रत ना हुई। नौकरों ने चंद मिनट के अंदर अंदर गाड़ी सफ़र के काबिल बना दी और अब वो खामोशी के हुक्म के मुंतज़िर थे। खातून ने वालिद की तरफ मुड़ते हुए कहा, जनाबे वाला, मैं आपके इस करम की हद दर्जा ममनून हूँ और आप पर पूरा एतमाद करती हूँ। अगर आप खुशी से मेरी बेटी को अपने घर में दाखिल होने की इजाज़त देते हैं तो मुझे भला क्या इनकार हो सकता है। यकीनन आपकी शराफत और आपके चेहरे मोहरे से ज़ाहिर है। मैं बखुशी इसे आर्जी तौर पर आपके हवाले करती हूँ, लेकिन मेरी एक गुजारिश सुन लीजिए। ये कहकर वालिद को कुछ वो दूर ले गई और दबी ज़ुबान में कुछ कहती रही जो मैं कोशिश के बावजूद ना सुन सकी। मैंने देखा कि वालिद उसकी शख्सियत से अज़हद मरऊब है और जो कुछ वो कह रही है उसे इतने अदब और इतनी तवज्जो से सुन रहे हैं जैसे वो उसके ग़ुलाम हों, और उन्होंने जवाब में कुछ भी ना कहा बल्कि उसके हर जुमले पर गिरा को खम देते रहे। ऐसे मालूम होता कि उस औरत ने वालिद पर किसी किस्म का जादू कर दिया। मैंने सोचा कि बाद में मैं उनसे पूछूंगी उस औरत ने अलग जाकर क्या बात की थी। 3 या 4 मिनट के बाद वह वापस आई और अपनी बेटी पर निगाह डाली जो अभी तक बेहिस्सो हरकत पलंग पर पड़ी थी और मादाम पेरीडॉन की ज़ैरे निगरानी थी। फिर वो घुटने के बल झुककर ज़मीन पर बैठ गई और अपने होंठ बेहोश लड़की के एक कान में रखकर न जाने क्या कहा
اور اس کی پیشانی کا بوسہ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور گاڑی کی طرف چل دی۔ اس نے مڑ کر ہم سب کو اشارے سے الوداعی سلام اور کوچ بار نے بڑھ کر دروازہ کھولا اور وہ اندر جا بیٹھی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہو گیا۔ 2 گھڑ سوار اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ ایک خادم حسب معمول گاڑی پچھلے پائیدان پر کھڑا ہوا۔ کوچ بار نے لمبا چاپک فضا میں لہرا کر گھوڑوں کو رسید کیا اور چشمے زون میں گھڑ سوار اپنی وجیح اور شاندار سواری لے کر وہاں سے گھس گئے اور چند لمحوں تک ٹاپوں کی آواز آتی رہی اور پھر مدم ہو کر خاموش ہو گئی۔ گاڑی نظروں سے اجڑ ہونے کے بعد بھی دیر تک ہم سب اسی جگہ نظریں جمائے دیکھتے رہے۔ تاریکی خاصی بڑھ گئی تھی اور دھند لمحہ بے لمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہمارے ایک نوکر کے ہاتھ میں لالٹین تھی، لیکن کوشش کے باوجود وہ روشن نہ ہو سکی۔ کئی مرتبہ دیا سلائی رگڑی گئی مگر جلتے ہی بجھ جاتی۔ قلعے میں چلو، اب یہاں رکنے کا کیا فائدہ؟ والد کی آواز گونجی۔ فوراً لوہے کے پلنگ کی طرف بڑھے تاکہ اسے اٹھا کر لے چلیں۔ میں کچھ دور تک اس کے پاس کھڑی تھی اور دفتر پلنگ پر لیٹی بے ہوش لڑکی کے جسم میں حرکت ہوئی اور پھر ایک سریلی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ وہ مادام پیریڈون سے پوچھ رہی تھی، تم کون ہو اور میری والدہ کہاں ہیں؟ چونکہ اس نے کروٹ بدل کر اپنا منہ مادام کی طرف کر لیا تھا، اس لیے میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی، اور ویسے بھی اس اندھیرے میں اس کے خدو خال کا اندازہ کرنا ناممکن تھا۔ مادام پیری نے خوش ہو کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے تمہیں ہوش تو آیا۔ اچھا یہ بتاؤ، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ نہیں، مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی، لڑکی نے اپنی حد درجہ مترنم آواز میں کہا۔ مگر یہ بتائیے میں ہوں کہاں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہماری گاڑی کہاں گئی؟ میری ماں کہاں ہے؟ مادام پیریڈون نے نہایت شفقت سے اس کے تمام سوالوں کا جواب دیا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، لیکن جب اسے یہ بتایا گیا کہ اس کی ماں اسے 3 ماہ کے لیے چھوڑ گئی ہے، اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کر اسے دلاسا دوں، مگر فوراً مادام لا فولٹر نے مجھے روک دیا اور کان میں کہا، بیٹی تم اس وقت کچھ نہ کہنا، فی الحال ہم ہی اسے سنبھالتے ہیں، تم دور ہی رہو۔ میں پھر آگے نہ بڑھ سکی۔ لا فولٹر نے چند تشفی امیز جملے کہے اور لڑکی کا رونا بند ہوا۔ مجھے تعجب تھا کہ رونے میں بھی اس کی بے مثال سریلی آواز کی نغمگی باقی رہی۔ قلعے میں جاتے ہی ایک کھلے اور بہت صاف ستھرے کمرے میں اس کے لیے بستر بچھا دیا گیا اور اس پر اسے آرام سے لٹا دیا گیا اور وہ دوبارہ سو گئی۔ تو مادام فولٹر نے واپس میرے پاس آئیں اور انہوں نے بتایا، لڑکی بے حد خوبصورت اور معصوم ہے اور باتیں تو اتنی پیاری کرتی ہے کہ بس سنا کرو۔ فی الحال مادام پیریڈون اور اس کے پاس نگرانی کے لیے موجود ہیں۔ یہ سن کر مجھے پھر اس کے کمرے میں جانے کا اشتیاق ہوا، لیکن اس مرتبہ والد نے مجھے روک لیا اور کہا، اسے ابھی آرام کرنے دو، جب وہ بیدار ہو جائے گی تب ملاقات کر لینا۔ اس دوران میں انہوں نے ایک خادم کو فوراً ڈاکٹر کو لانے کا حکم دیا تاکہ دیکھ لیں کہ کوئی تشویش کی بات تو نہیں۔ والد کا حکم پاتے ہی وہ ڈاکٹر صاحب کو لینے روانہ ہو گیا، جو 30 میل دور ایک قصبے میں رہتے تھے۔ ہم سب اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، جو اس قلعے کا سب سے اچھا کمرہ تھا۔ اس کی چھت اندازاً 30 فٹ اونچی اور شاہ بلوط کی بنی ہوئی تھی۔ دیواریں خاصی موٹی اور اس پر سنہری رنگ کا روغن پھیرا گیا تھا۔ کمرے میں شمالاً جنوباً 4 کھڑکیاں تھیں جن پر بھاری ریشمی پردے پڑے تھے۔ کمرے کا طول و عرض 60 اور 40 فٹ کے لگ بھگ ہوگا اور پورے کمرے میں قدیم طرز کا فرنیچر تھا۔ دیواروں پر 12 سنگوں، ہرنوں اور ریچھوں کی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں زمانہ قدیم کی تلواریں، بھالے، خنجر اور ذرا بختری آویزاں تھے۔ ان کے علاوہ 10-12 بڑی بڑی تصویریں بھی ان افراد کی تھی جو اپنے اپنے دور میں
इस किले के मालिक रह चुके थे। एक खिड़की से जंगल और उसकी पगडंडी और लकड़ी का पुल साफ दिखाई देता, और इस वक्त मैं एक ऊंची कुर्सी पर बैठी उसी जानब देख रही थी जहां थोड़ी देर पहले ये हादसा रूनुमा हुआ था। कमरे में लंबी लंबी मोमी शमें रोशन थी। वालिद एक सोफे में धन से पाइप से शुगल कर रहे थे और मादाम ला फोल्टन दीवार पर लगी एक खातून की तस्वीर देख रही थी जो 150 बरस कबल इस किले के मालिक की बीवी थीं। चंद लम्हों बाद मादाम प्यारीडॉन भी आ गईं और उन्होंने ऐलान किया, लड़की अब गहरी नींद सो रही है, और बाहर से दरवाज़ा मुकफ़ल करके चली आई हैं ताकि उसके लिए नाश्ते का कुछ बंदोबस्त करें। अम्मा सुनाइए, आपका हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के बारे में क्या ख्याल है? मैंने पूछा। अरे बेटी, क्या बताऊं, मैं तो उसे देखते ही फरिफ्ता हो गई। बाखुदा मेरी इतनी उम्र होने को आई, सैकड़ों हज़ारों लड़कियां एक से एक हसीन देखी होंगी, लेकिन ऐसी खूबसूरत लड़की आज तक नज़र ना आई। जन्नत की हूर है हूर, बल्कि हूरें भी उसे देखकर शर्मा जाएं। कहने को तो तुम भी बहुत खूबसूरत हो, लेकिन उस लड़की की बात ही कुछ और है। तस्वीर है तस्वीर। आवाज़ ऐसी प्यारी जैसे जल तरंग बज रहा हो, और बातें इतनी भोली भाली कि बयान से बाहर। मेरा बस चले तो उसे यहाँ से जाने ही ना दूं।